Welcome to all of you again. 5 minute chemistry with SK sir. So today question again from solid state. Very fundamental question that one cubic structure is there and two atom is there. First one is X and second one is Y. So what is the position of X atom? X atom is placed at corner of the cube and also face center. Similarly, Y atom present at body center and edge center. So again we have to calculate the Z effective, total number of atom and the formula of compound. So let us start. We know the contribution, that contribution at corner position, that is 1 by 8, S face center 1 by 2 and edge center that is 1 by 4, and if body centers that is 1. So we know that at corner is present and the contribution is 1 by 8. Similarly, how many atoms are present at face center? 6 face center is present and the contribution is 1 by 2. So this is 1 and this is 3. Similarly, Y atom present at body center. We know that body center there is 1 atom and their contribution is 1. Similarly, edge center 12 edges is present and their contribution is 1 by 4. So how much it is? This is 3. So what is the first part? Total Z effective, that X atom is present in 4 amount, 3 plus 1 total 4, and similarly 3 and 1 तो 4 एटम X के हैं और 4 एटम ही Y के हैं. तो X प्लस Y के टोटल Z इफेक्टिव कितना हो जाएगा? टोटल हमारे पास हो जाएंगे Z इफेक्टिव that is 8 atoms. This is the effective number of atom. So similarly total number of atom, how we can calculate that? The position is corner position face center. So we know that corner 8 corner is present, 6 face center is present, and how many body center? That is 1 body center, and how many edge center? That is 12. So what much it is total? 12 and 8 that is 20 and 6 7 27 atom. So I hope it is clear. Again, third part, what is the formula of compound? So as we have know that X is 4 amount and Y is 4 amount. So in a simple ratio or simple fraction formula, we can write 4 times of X, Y. So this is our formula of a compound. I hope it is clear to all of you. Let me go ahead to the next part, B portion of the question. So B question number 1, B part of this is, if all the atom are removed from one of the body diagonal. Very nice thing, very important. एक बॉडी डायगोनल्स में जितने एटम आते हैं, सो डायग्राम इज गिवन दैट वन बॉडी डायगोनल, इसमें दो कॉर्नर और एक फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, दो कॉर्नर एटम और एक बॉडी सेंटर वाला एटम हटा लिया गया है. तो कितना हमारा कंट्रीब्यूशन या जेड इफेक्टिव कितना रहेगा? अगेन 8 कॉर्नर्स अवेलेबल थे, उसमें से दो हटा लिए गए हैं. इज इट? सो दिस इज द नंबर ऑफ कॉर्नर एटम. फेस सेंटर को कोई फर्क नहीं पड़ा, फेस सेंटर पहले भी 6 एटम थे, अभी भी 6 हैं. क्या बॉडी सेंटर में से भी 1 एटम हटाया गया है? 1 बॉडी सेंटर था पहले भी और उसमें से एक हटा लिया गया है. इसी तरह एज सेंटर को कोई फर्क नहीं पड़ा, 12 नंबर ऑफ है. मल्टीप्लाई करते हैं इनके कॉन्ट्रीब्यूशन है. कॉर्नर पोजीशन पे 1 बाई 8, फेस सेंटर पे 1 बाई 2, सिमिलरली बॉडी सेंटर पे 1 एंड एज सेंटर पे कितना लिया जाता है? 1 बाई 4. सो व्हाट मच इट इज देन व्हेन वी कैलकुलेट? दिस इज टोटल 6 by 8 and this is 3. Again this is 0 and this is 3. So what much it is total amount? Then we have to calculate total number of X. So 6 by 8 plus 3. When we calculate, this is called 15 by 4. Similarly Y atom is total 0 plus 3, that is 3. So total Z effective we can calculate that 15 by 4 and addition of 3. So total Z effective what much it is? It is will come 27 by 4. So I hope it is clear. The B part of the equation is that we have to calculate the number of total number of atom. So corner position पे 8 एटम थे लेकिन 2 हटा लिए गए, तो 6 एटम corner position पे बचे. फेस सेंटर पे से पहले भी 6 थे, बॉडी सेंटर में हटा लिए गए तो 0 एटम और एज सेंटर पे 12. तो व्हाट मच इट इज टोटल? दिस इज टोटल 24 एटम. Again, what is the formula of compound? Formula of compound that we know, X atom is present at 15 by 4 times and similarly Y atom present at 3 times. So as in simple formula I can multiply by 4. So X will come at 15 times and Y will come at 12 times. This is final formula of a compound. I hope it is clearing to all of you. Again, let me go at the next part of this question. Question number C.
Again, see, very nice question. All the atom from the body diagonal from the diagonal of one of the face of the cube. एक फेस में जितने डायगोनल से वी नो ये फेस रिप्रेजेंट है डायग्राम में, एक फेस में दो डायगोनल एटम है। अब दो डायगोनल हैं, इस डायगोनल्स में जितने एटम हैं वो सब हटा लिए गए हैं। इट मीन्स कितने एटम हटाए हैं? 4 तो कॉर्नर से एटम हटा लिए गए हैं और एक फेस सेंटर वाला एटम भी हटा लिया गया है। So again we have to calculate the Z effective, total number of atom and the formula of compound. So let me go ahead next. हमारे पास कॉर्नर पोजीशन पे जो x एटम थे वो 8 अवेलेबल थे, उसमें से 4 हटा लिए गए हैं। दिस इज द नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर एंड कंट्रीब्यूशन कितना लिया जाता है? दैट इज 1/8। सिमिलरली x एटम हमारे पास कहाँ प्रेजेंट था? फेस सेंटर पे। तो फेस में टोटल 6 एटम थे लेकिन उनमें से एक हटा लिया गया है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे फेस पे और इनका कंट्रीब्यूशन कितना लिया जाता है? दैट इज 1/2। सो व्हेन वी कैलकुलेट इट दैट 1/2 एंड 5/2 टोटल विल कम एट 3। आई होप इट इज क्लियर द एक्स नंबर ऑफ एटम। सिमिलरली फॉर वाई, वाई आई कैन राइट एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर्स पे और एज सेंटर पे। तो बॉडी सेंटर पे अगेन एक एटम था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई किया दैट इज 1। इसी तरह एज सेंटर पे हमारे पास 12 एटम है, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मल्टीप्लाई किया मैंने 1/4 से। सो दिस विल कम 1 + 3 दैट इज 4 एटम। सो आई होप इट इज क्लियर। टोटल जेड इफेक्टिव कितना आएगा? 3 + 4 7 दैट इज टोटल जेड इफेक्टिव इज 3 + 4 दैट इज 7। आई होप इट इज क्लियर टू। अगेन बी पार्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम। हमारे पास एटम कहाँ कहाँ बचे हैं? कॉर्नर पोजीशन पे। कॉर्नर पोजीशन पे कितने एटम बचे? ओनली 4 एटम बचे। इसी तरह फेस सेंटर पे एक एटम हटा लिया तो फेस सेंटर पे कितने एटम बचे होंगे? फेस सेंटर पे हमारे पास 5 एटम बचे हैं। सिमिलरली बॉडी सेंटर और एज सेंटर, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो बॉडी सेंटर और एज सेंटर पे हमारे पास पहले भी एक एटम था और 12 एजेस। टोटल नंबर ऑफ एटम जो आएगा इन सबका सम करने से दैट इज 22 एटम्स। आई होप इट इज क्लियरिंग टू ऑल ऑफ यू। अगेन वी नो द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो x नंबर ऑफ एटम 3 टाइम्स है एंड y जो नंबर है वो 4 टाइम्स है, तो फाइनल वी गेट द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। अगेन इट इज क्लियरिंग टू यू ऑल ऑफ यू। लेट मी गो ahead the next portion of the question, question number सेम क्वेश्चन बट इसका डी पार्ट। अगेन इफ ऑल एटम आर रिमूव फ्रॉम वन ऑफ द प्लेन, किसी एक प्लेन से हटाए गए हैं, पासिंग थ्रू द जो मिडिल में पास हो रहा है ऑफ द क्यूब। लेट सपोज इट इज गिवन कि ये कोई क्यूब बना हुआ है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसके मिडिल में कोई एक प्लेन बना है। प्लेन मतलब ये पूरा का पूरा एक कंसिडर होगा। अब इस प्लेन में जितने एटम है वो सब हटा लिए गए हैं। अब इस प्लेन में जितने एटम है वो सब हटा लिए गए हैं, इट मीन्स कि कितने एटम हटाए गए हैं हमारे पास यहाँ पे कि इस प्लेन में ये तो एज पे पोजीशन पे आ रहे हैं, ये फेस सेंटर पे और ये बॉडी सेंटर पे, यानी कि एक बॉडी सेंटर इस तो हटाया गया होगा फ्रॉम दिस वन। ये आप देख सकते हैं, मैंने डायग्राम शो भी किया हुआ है। एक बॉडी सेंटर से हटाया गया है। सिमिलरली चार जो एज सेंटर्स हैं, ये हमारा 1 2 3 एंड 4, जो चार एज सेंटर है वो भी हटा लिए गए हैं। इसी तरह फेस सेंटर 1 2 3 एंड 4 जो फेस सेंटर है ये भी हटा लिए गए हैं। तो हमें सेम चीज कैलकुलेट करना है, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव के लिए अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमारा एक्स एटम जो प्रेजेंट था वो कॉर्नर पोजीशन पे था। क्या कॉर्नर पोजीशन पे कोई फर्क पड़ा है? नहीं। कॉर्नर पोजीशन पे हमारे पास 8 एटम्स थे और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 से मैंने मल्टीप्लाई किया। आई होप। इसी तरह एक्स एटम जो प्रेजेंट था वो हमारे पास कहाँ प्रेजेंट था? फेस सेंटर पे। टोटल फेस 6 अवेलेबल है लेकिन उसमें से 4 एटम हटा लिए गए हैं और मल्टीप्लाई करता हूं मैं 1/2 दैट इज कंट्रीब्यूशन से। सो ये मेरे पास जो नंबर आएगा वो एक्स एटम का आएगा। इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आ रहा है? 1 + 1 दैट इज 2। एक्स नंबर के मुझे पता चल गया दैट दो एटम एक्स के अवेलेबल हैं। सिमिलरली जेड इफेक्टिव मैं निकालता हूँ वाई एटम के लिए। तो वाई एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है मेरे पास? बॉडी सेंटर पे। क्या एक बॉडी सेंटर प्रेजेंट था और उसमें से एक एटम ही हटा लिया गया है, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे और मल्टीप्लाई करूंगा मैं 1 से। इसी तरह एज सेंटर पे भी प्रेजेंट था। एज सेंटर पे हमारे पास कितने एटम प्रेजेंट थे? 12 एटम प्रेजेंट थे लेकिन 4 एटम हटा लिए गए हैं। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मल्टीप्लाई करता हूँ इनके कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज 1/4 से, तो जब इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरे पास कितना आएगा? दैट इज 0 एंड दिस इज 2। तो आई होप ये मेरे पास किसका नंबर आया? y। तो टोटल z इफेक्टिव जब मैं कैलकुलेट करता हूं
तो x एटम प्रेजेंट है मेरे पास 2 टाइम से और y एटम प्रेजेंट है 2 टाइम से, टोटल z इफेक्टिव तो आ जाएगा 4। अगेन द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हमारे पास एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, हमारे पास एटम जो प्रेजेंट है कि 8 कॉर्नर पोजीशन पे हमारे पास 8 एटम थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। फेस सेंटर पे एटम कितने बचे होंगे, केवल 2 ही एटम बचे होंगे। इसी तरह बॉडी डायगोनल पे 0 एटम, क्योंकि एक ही एटम था वो भी हटा लिया गया था तो 0 एटम। इसी तरह एज सेंटर पे हमारे पास 12 थे लेकिन उसमें से 4 हटा लिए गए तो टोटल 8 बचे होंगे। तो व्हाट मच इट इज टोटल, दैट इज 18 एटम। I hope it is clear. The third part of the question, that is we have to calculate the formula of compound. So as we know that Z effective X number of atom, how much time it is 2 times, and Y atom is also 2 times. So the simple ratio I can write it XY 2 times of XY. So I hope it is clear. Very nice question. Again, this is all the conceptual series. Let me go ahead the E portion of the question, that E part of the, again same question is given, the E portion, very nice question. Again we read out the very finest thing. All atom are removed, atom हटाए गए हैं, one of the axis के along passing through one of face center, किसी एक फेस, ये 2 फेस मैंने पास किए, आपको डायग्राम में अवेलेबल होगा। इस एक्सेस में जितने एटम आ रहे होंगे, बट ये एक्सेस पास होना चाहिए फेस के सेंटर से, तो ऑब्वियसली 2 फेस सेंटर एटम हटाए गए हैं और एक बॉडी डायगोनल वाला हटाया गया है फेस सेंटर। बस फंडामेंटल थिंग्स यही है कि आपको एटम्स पता लग जाए कि कहाँ कहाँ के एटम हटाए गए हैं, तो वेरी इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। लेट मी स्टार्ट। तो जेड इफेक्टिव सबसे पहले मैं निकालता हूँ एक्स एटम के लिए। एक्स एटम के लिए जेड इफेक्टिव जो निकालूंगा कि कॉर्नर पोजीशन पे 8 एटम्स थे, अभी भी 8 है, उनको कोई फर्क नहीं है, मल्टीप्लाई किया मैंने 1/8 से। अगेन एक्स एटम और कहाँ प्रेजेंट था, फेस सेंटर पे। फेस सेंटर पे हमारे पास टोटल 6 एटम थे, उसमें से 2 एटम रिमूव कर दिए गए और मल्टीप्लाई करता हूँ इनके कॉन्ट्रीब्यूशन से, तो ये मेरे पास जो जेड इफेक्टिव आएगा वो एक्स एटम के लिए आएगा, दैट इज हाउ मच 1 + 2 दैट इज 3। सो आई होप इट इज क्लियर। सिमिलरली मैं जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करता हूँ वाई के लिए। तो जेड इफेक्टिव में वाई एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पोजीशन पे प्रेजेंट है, लेकिन वो एक एटम था वो भी हटा लिया गया, मल्टीप्लाई करता हूँ इसके 1 कॉन्ट्रीब्यूशन से। इसी तरह वाई एटम एज सेंटर भी प्रेजेंट था, एज सेंटर को कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले भी 12 थे अभी भी 12 है, मल्टीप्लाई करता हूं मैं इनके कॉन्ट्रीब्यूशन से, दैट इज 1/4। तो जब इसको कैलकुलेट करता हूं तो 0 + 3 दैट इज 3। सो व्हाट मच टोटल जेड इफेक्टिव फॉर एक्स + वाई, एक्स + वाई को हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल जेड इफेक्टिव आएगा दैट इज 6। आई होप इट इज क्लियरिंग टू ऑल ऑफ यू। अगेन सेकंड पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन, दैट वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर। तो एटम कहाँ का प्रेजेंट है, एट कॉर्नर पोजीशन, तो कॉर्नर पोजीशन पे 8 है। इसी तरह फेस सेंटर पे कितने एटम अवेलेबल है, 6। बॉडी सेंटर पे एक एटम था वो भी हटा लिया गया इसलिए 0। और एज सेंटर पे हमारे पास कितने एटम प्रेजेंट है, 12 एटम। सो व्हाट मच इट इज टोटल अगेन 24 एटम। I hope it is clear to all of you. Again, third portion of the question, that we have to calculate the formula. So what much x atom are total in 3 times and y atom is also 3 times. So I can write in simple whole number ratio that 3 times of xy. This is the final formula of compound. I hope it is clear to all of you. Very fundamental. I revise all concepts of formula. Thank you.